As you know that we are discussing RBCs. Clear? Blood composition, plasma is complete. RBCs, the basic and the important thing, those are related to the RBCs earlier explained by me. Today, and apart from that, what is the work of hemoglobin and what is hemoglobin, it is also explained. Now we will take up the another important topic which is known as WBCs, white blood corpuscles. Clear? White blood corpuscles is over. White blood corpuscles is over. It is completed by me or not? No one is responding. Sir, type of WBCs are started. Very, very good, very good, very good. Poonam is looking aware toward the study. Very good, Poonam. The WBCs, what are WBCs? It is completed by me. WBCs, white blood cells. They are also known as leukocyte. They have not any types of pigment, lifespan. Clear? All things explained by me. Now today we will take up types of WBCs. They are also important because क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है types of WBCs में से. They are important work. Clear? There are the 5 types of WBCs. Clear? WBCs are 2 types: granulocytes and agranulocytes. Clear? Granulocytes are, they have got granule cytoplasm. इनका जो cytoplasm होता है इसमें granule means they have got the dotted like structures. उसमें क्या होते हैं? dot like structures होते हैं. They are known as granules. Agranulocyte means they have not any types of granule like structure. It means in their structure, in their cytoplasm, the dotted like structures are not present. Clear? They are known as agranulocytes. Granulocytes are found in the 3 types of categories. They are known as acidophils, basophils, and neutrophils. Clear? And agranulocytes are present in the 3 types of categories. 2 types of categories. They are known as leukocytes and lymphocytes. Clear? ये भी मैं आपको बता चुका था. I'm clear? Yes, sir. हाँ. Yes. So today we will take up first of all acidophils. Acidophils भी मैं आपको बता चुका था. I think so. Acidophils, or they are also known as eosinophils. Yes, sir. Now again we will start. Look here, please pay attention. This topic is very, very important. Clear? Rest of other students, please turn on your cameras. Few students cameras is on. Only 3 students. Please pay attention. Priyansi, are you not able to listen to me? Have a look. The visibility is proper? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now look here. Look here. Types of WBCs, first of all, they are known as granulocytes. Granulocytes mean they have got granular cytoplasm. Cytoplasm, इनका जो cytoplasm होता है उसमें dotted like structures होते हैं. These are the dotted like structure. Have a look. These are the dotted like structures. Clear? So on the basis of stain by granules, ये granules जो होते हैं इनको कुछ एक stain देते हैं. On the basis of granules, they are divided into 3 types of categories. Acidophils, they have got acidic stain. Basophils, they have got basic stain. Remember it. And neutrophils, they have got both stains, acidic and basic both. तो इसलिए ये क्या कहलाती है? Neutrophils कहलाती है. First of all, we will take the acidophils or eosinophils. Acidophils और eosinophils के बारे में हम पढ़ेंगे. Clear? Look here, please pay attention. Acidophils and eosinophils, they are 2 to 3% of the leukocyte. Clear? They occupy the 2 to 3% of the leukocyte, and they all are bilobed nucleus. They have got bilobed nucleus. What is the meaning of bilobed nucleus? It means their nucleus is divided into 2 types of categories. इनका जो nucleus होता है उसमें 2 lobed होते हैं. First lobe is this one, and second lobe is this one. So in their nucleus 2 lobes are present, and we know that they are known as acidophils. So that's why they take acidic stain. Clear? They have a specific types of tendency. They engulf the toxic materials. Those types of toxic materials are generated by the cells or the different types of antigens or antibody reactions. Then they engulf the all types of toxic materials. यानी ये क्या करती है? साफ सफाई का काम करती है और toxic material को digest करने का काम करती है. They also release antihistamine.
एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज दे हैव गॉट, रिमेंबर इट। इनमें क्या होती है? एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज हिस्टामाइन? हिस्टामाइन इज द एलर्जिक सब्सटेंस। उस एलर्जिक सब्सटेंस को कम करने के लिए क्या करती है? एंटी एलर्जिक सब्सटेंस को रिलीज करती है, जिससे क्या होती है? वो एलर्जी हमारी कम हो जाती है। देन आफ्टर दैट their number is increase whenever our body have got different types of allergy, their number is increase, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? एलर्जी में फॉर एग्जांपल अस्थमा एंड द हे फीवर। अस्थमा यानी कि जो ब्रोंकाइटिस, दमे की बीमारी हो जाती है, एंड हे फीवर का मीनिंग हो गया ऐसा फीवर जो जानवरों को होता है, यानी कि लगभग क्या होता है? बहुत तेजी से बुखार आता है। इट इज नोन एज हे फीवर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? These all things are related to the acidophils. So acidophils is clear. Now we will take up the basophils. What are the basophils? It is properly visible? Yes, sir. Yes, sir. Huh. Basophils, why they are known as basophils? Because they have got basic strain. They have basic strain, so that's why they are known as basophils. But important thing is related to the basophil. It is they are 0.5 to 10% of the leukocyte. यानी ये क्या होती है? सबसे कम मात्रा में होती है ल्यूकोसाइट। All types of WBC, they are very, very less in amount, 0.5 to 10% only. And they have got a S-shaped nucleus. In their nucleuses look as like a S-shape. Clear? S-shaped nucleus is present in these cells. And after that, they also release the allergic substances. ये क्या करते हैं? एलर्जिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, एंड दिस एलर्जिक सब्सटेंस इज नोन एज हिस्टामाइन। रिमेंबर इट। ये हिस्टामाइन नाम के एलर्जिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है? एलर्जिक रिस्पांस दिखाती है। फॉर एग्जांपल रेसेस इन अवर स्किन। जब आप कहीं धूल मिट्टी में जाते हैं तो आपको छींक आने लग जाती है। रेड कलर के क्या होते हैं? स्पॉट जैसे बंदा लग जाते हैं हमारी स्किन पर। सी these all things are because of the presence of the histamine chemical, and this histamine chemical is releases by these basophil cells. Clear to all of you? Yes, sir. After that the basophils also release a very, very important chemical which is known as heparin. They also release heparin. What is heparin? Heparin is a anticoagulating substance. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो कभी भी जमता नहीं है, उसमें कभी भी कोगुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। बट whenever we injured and blood came out from our injured part or the wound, then after 5 and 10 minutes the blood coagulation process start. यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो उसमें कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड जमने लग जाता है। क्वेश्चन इज दैट राइज कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है, उसके लिए बेसिक रीजन क्या है? heparin, a specific types of chemical which is present in our blood and released by the basophil cells. basophil cells क्या करती हैं? एक तरह का heparin नाम का सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जो क्या करता है? एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Important it is. Yes, sir. So histamine and heparin, they both things are important. heparin के इंजेक्शन अधिकतर हार्ट के स्टेन करी जा सकती है एसिड और बेसिक सब्सटेंस दोनों से। न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन अ लार्जर अमाउंट। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? बहुत ज्यादा संख्या में किसमें होती है? ल्यूकोसाइट्स में होती है। सो दे आर 60 to 65% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड दे हैव मेनी लोब्ड न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? बहुत सारे लोब बने रहते हैं, 1 2 3 4 एंड ऑल दैट। सो दे हैव गॉट मेनी लोब्ड न्यूक्लियस। क्लियर? आफ्टर दैट they take phagocytic process. फैगोसाइटिक प्रोसेस, यानी जितनी भी न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटिक प्रोसेस? फैगोसाइटिक प्रोसेस का मीनिंग होता है मार करके किसी चीज को खा जाना। फॉर एग्जांपल, whenever different types of pathogens, bacteria, virus, fungi entered or allergic substances enter in our body, these neutrophil cells act as like a soldier and they kill all types of pathogens and engulf them. यानी उनको मार करके खा जाती हैं, तो इसलिए क्या करती हैं? फैगोसाइटिक सेल कहलाती है। क्लियर? एंड दे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, इट इनगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स। इसलिए क्या करती हैं? जर्म्स और डेड सेल्स को क्या करती है? इनगल्फ कर जाती है। बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जस्ट लाइक द लाइसोसोम्स की तरह। इट इज क्लियर? न्यूट्रोफिल इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
न्यूट्रोफिल इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. नाउ आफ्टर दैट ग्रेनुलोसाइट तो हमारी कंप्लीट हो गई. नाउ वी विल टेक अप द अग्रेनुलोसाइट. Agranulocytes are two types. First is known as lymphocytes, second is known as monocyte. Agranulocytes क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, जिनमें एक lymphocytes आती है, दूसरी monocytes आती है. First of all, we will take up the lymphocytes. Clear? Sorry, monocytes. Monocytes क्या होती हैं? देखो, what are the monocytes? Visibility is proper ना? Yes, sir. Yes. What are the monocytes? Monocytes होती क्या है? Look here. Monocytes are larger in all types of leukocytes. सारी की सारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें मोनोसाइट्स सबसे बड़ी होती हैं. रिमेंबर इट, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. और मोनोसाइट्स होती कैसी हैं? इस तरह से बहुत बड़ी सी होंगी और उनका न्यूक्लियस भी बीच में क्या होगा? बहुत बड़ा होगा. क्लियर? दे आर नोन एज मोनोसाइट्स. क्लियर? एंड दे ऑक्यूपाई 6 to 8% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट. जितनी भी ल्यूकोसाइट्स होती है हमारी WBCs होती है, उनका 6 से 8% क्या होती है? ये ऑक्यूपाई करती है. क्लियर? दे हैव आल्सो द फैगोसाइटिक प्रोसेस. इनका भी क्या काम होता है? मोनोसाइट्स भी क्या करती हैं? फैगोसाइटिक होती है प्रोसेस में. यानी ये भी क्या करती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और जर्म्स को क्या करेंगी? मारेंगी और उसके बाद खा जाएंगी. क्लियर? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द मोनोसाइट, इट इज मोनोसाइट ही क्या होती है? आगे चल करके माइक्रोफेजेस नाम की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Monocytes are converted into macrophages, but when they entered into tissue space, tissues जो होते हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस होता है. फॉर एग्जांपल these are the tissues. इन टिश्यूज के बीच में क्या होती हैं? ये माइक्रोफेजेस. ये जो आपकी मोनोसाइट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये इंटर्ड कर जाती हैं. मोनोसाइट्स इंटर्ड कर जाती हैं और यही मोनोसाइट्स क्या होती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. और यही माइक्रोफेजेस क्या करती हैं? टिश्यूज को हमारे पैथोजन से बचाती हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So this is very very important thing. याद रखना. What are macrophages? आप कहेंगे, आपका आंसर होगा what are macrophages. जैसे क्वेश्चन आता है what are macrophages, तो आपका आंसर ऐसे होगा macrophages are monocytes, but earlier stage they are known as monocytes, but whenever they entered into the gap of the tissues or the tissues, then they are convert into macrophages. जब ये टिश्यूज के स्पेस में कन्वर्ट चली जाती हैं, यानी टिश्यूज के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें जब ये इंटर्ड करती हैं तब ये माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. एंड दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू किल द पैथोजेंस एंड दे प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now after that monocyte is clear. Now the lymphocytes are also important. Basically lymphocytes are two types. lymphocytes क्या होती हैं? वो दो तरह की होती हैं. T lymphocyte cells and B lymphocyte cells. Remember it, T lymphocyte cells and B lymphocyte cells. Lymphocytes occupy 20 to 25% of the total leukocyte. जितनी भी WBCs होती हैं उसका 20 से 25% क्या होती हैं? आपकी lymphocytes होती हैं. और ये lymphocytes आपकी these all types of lymphocytes are non-motile. Remember it. ये lymphocytes क्या होती हैं बेटा? याद रखना, ये non-motile होती है, यानी अपनी जगह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये नहीं जाती हैं. क्लियर? They are non-motile and non-phagocytic, यानी ये किसी भी चीज को मार करके खाने वाली इनमें प्रोसेस नहीं होती है. It is very very important thing. They are non-motile and non-phagocytic, यानी किसी भी चीज को मार करके नहीं खा सकती हैं. But by which type of property they defend our body, यानी हमारी बॉडी को ये डिफेंड करने का काम कैसे करती हैं? बेसिकली दे सीक्रेट एंटीबॉडीज. ये क्या करती हैं? T4 लिम्फोसाइट और B4 लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं ये एंटीबॉडीज को रिलीज करती हैं. और एंटीबॉडीज जब रिलीज होंगी देन दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस. क्लियर? यही एंटीबॉडीज क्या करती हैं? माइक्रोब्स को आपके क्या करती हैं? खत्म करती हैं. और एंटीबॉडीज यही जो एंटीबॉडीज होती है वो माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को क्या करती हैं? किल करने का काम करती है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, They have lymphocytes have also a very very important property which is known as healing property. Healing means जब भी आपके कहीं पर घाव होता है और wound like injured part is
रिकवर बाय द लिम्फोसाइट सेल्स। तो लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती हैं? हीलिंग का भी काम करती है, हीलिंग ऑफ द इंजरीज, यानी ये घाव को पूरा करने में, उसको फिलअप करने में भी हेल्प करती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, दोज आर रिलेटेड टू द लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसीज भी हमारी कंप्लीट हो गई, आरबीसीज भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल टेक अप प्लेटलेट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Any doubt, any confusion related to the above topics? ऐसी चीज कोई जो बच्चे को समझ में ना आई हो किसी को? No one is responding. Beta, first of all of you turn on your cameras. हाँ. Any student have got any doubt, any confusion related to the topic? Poonam, Priyansi, Sabishta, Priyanjal, No, sir. Bhumi, Yasir, and rest of other students. No, sir. Now we will take up the platelets. What are platelets? Platelets क्या होती है? Platelets topic बहुत छोटा है, but it is important also. Why? Because platelets have a very specific properties. Platelets में क्या होती है? एक बहुत ही specific property होती है, which is known as blood coagulation process. यानी ये ब्लड को जमाने का काम करती है इन द इंजर्ड पार्ट। जहां पर भी इंजरी होती है, जहां पर कट लग जाता है, आफ्टर सम टाइम 5 and 10 minutes द ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट, यानी वहां पर ब्लड जमने लग जाता है। अगर ब्लड जमेगा नहीं तो नॉन स्टॉप ब्लड फ्लो होता रहेगा। एक्सेसिव फ्लो ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। ज्यादा ब्लड बहने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ प्लेटलेट्स? इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, यानी वो ब्लड को जमाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इंजर्ड पार्ट। क्लियर? Now, what are the important things? Those are related to the platelets. Look here, please pay attention. Have a look. Platelets. Platelets, another scientific name is known as thrombocytes. Thrombocytes. Platelets are also known as thrombocytes. Thrombocytes क्यों कहलाती हैं? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो that's why they are known as thrombocytes. Clear? Platelets have not any types of nuclear hemoglobin. इनमें hemoglobin नहीं होता है. They are also transparent, like, and they have rounded and oval shaped nucleus. Sorry, their shape is rounded and oval shape. यानी ये क्या होती हैं? Rounded और oval shape में पाई जाती है. And the important thing, they are less than RBCs. ये RBCs से कम होती हैं. Clear? RBCs हमारी बॉडी में 4 to 5 लाख होती है. But they are less than RBCs, but more than WBCs. ये WBCs से ज्यादा होती हैं। WBCs हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? 62. Anyone can explain how many WBCs are present in our body? Anyone? Anyone? बेटा किसी बच्चे को पता है? How many RBCs? हाँ, very good. 6,000 to 10,000 WBCs are present in our body, but average 7,000. तो जो platelets होती हैं, they are more than WBCs and more than WBCs and less than RBCs. ये RBCs से कम होती है. So their average amount is 2 lakh to 2,50,000. यानी ये लगभग कितनी होती है? 1.5 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब होती है हमारी बॉडीज में. क्लियर? रिमेंबर इट. दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड. इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जस्ट लाइक आरबीसीज. आरबीसीज में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसीज में भी न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. क्लियर? एक्सेप्ट डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसीज में आपको न्यूक्लियस मिलेगा. एंड रिमेंबर इट, एट द साइट ऑफ द इंजरी दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन सब्सटेंस. रिमेंबर इट, इट इज इंपॉर्टेंट. जहां पर भी हमारे इंजरी होती है तो वहां पर से ब्लड निकलता है, तो वहां पर ये क्या करती है? एक तरह का केमिकल रिलीज करती है जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, which help in blood clotting. जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हमारी हेल्प करता है. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने की वजह से ही इसका नाम क्या बना है? क्या नाम, इसको हम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. क्लियर? इट ऑल्सो
जनरेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, यही बोन मैरो से भी रिलीज होती है, और इसका लाइफ स्पान कितना है? 3 to 7 days. Clear to all of you? Clear? Yes, sir. Any doubt, any confusion related to the RBCs, WBCs and platelets? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में? No, sir. Now after that we will take up the another important topic which is known as blood or the blood groups. अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में. क्लियर? ओपन योर एनसीईआरटी, चेक आउट. यस सर बेसोफिल हिस्टामाइन और हेपेरिन क्यों रिलीज करता है? हाँ, सर बेसोफिल हिस्टामाइन और हेपेरिन क्यों रिलीज करता है? आवाज बेटा साफ नहीं आ रही है, जोर से बोलो. क्या कहा? सर बेसोफिल हिस्टामाइन और हेपेरिन क्यों रिलीज करता है? Basophils. Why basophils release histamine and heparin? Basophils have specific types of property. Basophils क्या होते हैं? वो बेसिक स्टेन वाले होते हैं. क्लियर? Their stain is basic. वो हिस्टामाइन और हेपेरिन क्यों रिलीज करता है? They release heparin to defend our all types of blood cells. यानी जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs, सॉरी आरबीसीज और प्लेटलेट्स, उन सबको आपस में जमने नहीं देता है. यानी हमारे ब्लड को क्या होता है? उसको कोगुलेट नहीं होने देता. तो इसमें एंटी कोगुलेशन प्रॉपर्टीज होती है. हेपेरिन रिलीज करेगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड में थिकनेस बनी रहेगी. ब्लड में थिकनेस बनी रहेगी तो ब्लड क्या, सॉरी थिननेस बनी रहेगी, यानी कि ब्लड आपका हमारा क्या रहेगा? पतला रहेगा, डायलूट रहेगा हेपेरिन के रिलीज की वजह से. अगर ब्लड पतला होगा तो क्या होगा? वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में इजीली फ्लो कर सकता है और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंच सकता है. तो इसीलिए ये रिलीज करती है हेपेरिन. दूसरा, ये दे ऑल्सो रिलीज द हिस्टामाइन. ये हिस्टामाइन इसलिए रिलीज करती हैं कि हिस्टामाइन क्या है? एक एलर्जिक सब्सटेंस है जो हमारी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम धूल मिट्टी वाली जगह में गए हैं और हमें स्नीजिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है, या हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा होते चले जा रहे हैं और हमारी बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही है उससे, तो एट लास्ट क्या होगा? हमें मेजर यानी कि सीवियर केसेस, यानी कि हमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा. उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी ये सेल्स क्या करती हैं? बहुत जल्दी से केमिकल रिलीज करती हैं जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं. और ये हिस्टामाइन क्या करता है? हमारी स्किन पर या हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाने लगता है. हमें इचिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हमारी बॉडी में रैसेस होने लग जाएंगे या छोटे छोटे दाने होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें एलर्जी हो रही है और हम वो पर्टिकुलर चीज से अवेयर हो जाएंगे. क्लियर? यस सर. Clear to all of you? Now after that we will take up the another important things. In your NCERT checkout, it is blood groups are there. Yes, sir. Yes, sir. Now we will take up the another important topic which are known as blood groups. Now please pay attention here. This topic is very very confusable. इस टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. क्लियर? A blood group, AB blood group, B blood group और O blood group. There are 4 types of blood groups: A, B, AB and O. आप सारे बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए. Remember it, positive and negative thing also. Please pay attention here, Priyanjal and rest of other students. First of all, question is that rise, what are blood groups? Blood groups कौन कौन से होते हैं? Clear? There are 2 types of blood groups: blood group A, blood group B and blood group O. ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि 3 तरह के ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर करे गए. ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ. These all 3 types of blood groups are discovered by Landsteiner and Wiener. लैंडस्टीनर और विनर नाम के 2 साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा. क्लियर? आफ्टर दैट AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स. AB जो ब्लड ग्रुप है उसको बाद में डिस्कवर करा गया. Clear? Remember it. And AB blood group is discovered by the 2 types of scientists. These names are known as, इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं. Clear? मैं आपको दिखाता हूं. Please pay attention here. Look here. Visibility is proper. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, please pay attention here. Blood groups are two types, A, B, O and blood group AB, यानी कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हो गए. A, B, O discovered by Landsteiner and Wiener, and AB blood group discovered by De Castello, where name is De Castello and Stuck. हिंदी में भी लिखा है मैंने Stuck. Like De Castello and Stuck, they discovered the AB blood group. Clear to all of you? Yes, sir. अब देखिए बेटा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलती है, इसको आप मिस मत करिएगा. प्लीज पे अटेंशन हियर. ब्लड ग्रुप्स हैव मल्टीपल एलिलिज्म. ब्लड ग्रुप्स हैव मल्टीपल एलिलिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म? आपने 10th में जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने एलील्स पढ़े होंगे. क्लियर? टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल Yes, sir. टी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस. क्लियर? अगर कैपिटल टी होता था तो वो आपका कहलाते थे एलील्स कहलाते थे, और वो होमोजाइगस कहलाता था अगर सेम होगा. कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा तो वो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए. क्लियर? तो उसी तरह के एलील्स, ब्लड ग्रुप्स हैव आल्सो द मल्टीपल एलील्स. ब्लड ग्रुप में भी मल्टीपल एलील्स होते हैं. क्लियर? इट मींस, इसका मीनिंग होता है ब्लड ग्रुप्स कंट्रोल्ड बाय, रिमेंबर इट, मोर देन 2 एलील्स. यानी ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 2 से ज्यादा एलील्स के थ्रू क्या करे जाते हैं, कंट्रोल करे जाते हैं. कैसे? लुक हियर, यहां देखिए. ब्लड ग्रुप हैव गॉट, दीज एलील्स आर नोन एज IA. आई जो है बेटा वो डिनोट कर रहा है आपको एलील्स को. IA, IB एंड IO, दीज आर नोन एज एलील्स. याद रहेगा बेटो, IA, IB एंड IO, दीज आर नोन एज एलील्स. ये एलील्स आपके ब्लड ग्रुप्स के हैं. IA and IB are known as dominated. जो IA और IB हैं वो dominated alleles कहलाते हैं. What is the meaning of dominated? Anyone can explain? सर जो अपना कैरेक्टर सबसे पहले दिखाता है. Very good. जो अपने कैरेक्टर्स को, very good, F1 जनरेशन में सबसे पहले दिखाएगा, they are known as dominated. तो IA and IB are dominated and I0 और IO is known as recessive. What is the meaning of recessive? रिसेसिव का मीनिंग होता है जो अपने को F1 जनरेशन में स्टार्टिंग में शो नहीं करता है, यानी जो बाद में F2 और F3 जनरेशन में अपने को शो करेगा. दे आर नोन एज रिसेसिव. रिसेसिव जो होता है हमेशा छुपा हुआ रहता है. डोमिनेटेड जो नेचर होता है हमेशा सामने आ जाता है. क्लियर? Yes, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्ड दो बेटा जल्दी से. Yes, sir. हाँ, वेरी Yes, गुड. sir. हाँ, आफ्टर दैट लुक हियर. So how many alleles, question is that rise, how many alleles are present in blood groups? Blood groups के alleles कौन-कौन से होते हैं? Look here. There are 6 types of genetic types. 6 genetic types are possible in the case of blood groups. Blood group जो होते हैं A, B, O में, उसमें ये लगभग कितने 6 तरह के आपके possible genetic types होते हैं. Look here. First of all, if IA, I0, IB, I0, IB and I0 and I0. अभी मैंने कैसे बनाया है? Look here. If a person which suppose अगर genetic group IA और IA है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ the blood group is A. इस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा. A क्यों होगा? Because they both are homozygous. यहाँ देखिए दोनों सेम है. से दो both are homozygous. So blood group is A. A and homozygous. A और homozygous रहेगा. IA and I0, they both are homozygous. क्या ये दोनों homozygous हैं? No, sir. No, sir. Yes. ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस हो जाएंगे. बट जो ब्लड ग्रुप होगा वो बेटा A ही रहेगा. कोई बता सकता है यहाँ ब्लड ग्रुप A ही क्यों होगा? सर क्योंकि A डोमिनेंट है इसलिए. वेरी गुड. ए डोमिनेंट है और ओ आपका क्या है, यानी कि IO क्या है? रिसेसिव है. यानी कि ए अपने आप को सबसे पहले F1 जनरेशन में दिखाएगा. तो ऐसे लोगों का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका? द ब्लड ग्रुप ऑफ दीस टाइप्स ऑफ, इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा आपका? ब्लड ए होगा, बट ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा. इट इज कंप्लीट. यस सर. अब आप बच्चों बता सकते हैं कि लुक हियर, IB, दे बोथ आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस?
होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा? बी। बी, वेरी गुड। जो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। नाउ सेकंड इज नोन एज IB एंड I0। इट इज होमोजाइगस, इट इज हेट्रोजाइगस, वेरी गुड, क्योंकि दोनों अलग अलग है। बट पर्सन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका? बी। बी होगा। व्हाई ब्लड ग्रुप बी? इसलिए होगा क्योंकि बी इज डोमिनेटेड एंड ओ इज Dominant. रिसेसिव। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब नीचे आ जाते हैं। ये जिस बच्चे को आता होगा वो जल्दी से अपना रेज योर हैंड और जल्दी से बोलेगा। इफ ब्लड ग्रुप, इफ एलील्स आर IA एंड IB, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा? AB. AB। कोई बता सकता है AB क्यों होगा? सर क्योंकि बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा। AB डोमिनेटेड है, B भी डोमिनेटेड है, दोनों के दोनों अपने कैरेक्टर को सामने शो करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB ब्लड ग्रुप होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज नॉट होमोजाइगस, इट इज नॉट हेट्रोजाइगस। ना ही ये होमोजाइगस है, ना ही ये हेट्रोजाइगस है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या हो गया? कोऑपरेट करते हुए दोनों के दोनों डोमिनेंट हो गए। कोऑपरेट करते हुए दोनों के दोनों डोमिनेंट हो गए। ये कह रहा है कि मैं भी F1 जनरेशन में जाऊंगा, ये भी कह रहा है मैं भी F1 जनरेशन में जाऊंगा। तो दोनों के दोनों F1 जनरेशन में जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द ब्लड ग्रुप इज AB and they are known as, they are the examples of codominance। ये codominance का एग्जांपल हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. After that, at last, if alleles are I0, then they both are recessive, they both are not dominated, they both are recessive। ये recessive हैं, obviously they both are homozygous also, इसलिए homozygous recessive भी है। homozygous recessive, तो homozygous होने के साथ साथ ये recessive भी है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इट इज क्लियर? Yes, sir. इट इज क्लियर? यहां तक Yes, अपने sir. बच्चों अब सबसे, बेटा म्यूट योरसेल्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात आती है, देयर आर 6 जेनेटिक टाइप्स आर पॉसिबल। 6 जेनेटिक टाइप्स आर पॉसिबल, बट 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। यहां पर हमें 6 इसके जेनेटिक टाइप्स तो दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर ब्लड ग्रुप हमें कितने मिलेंगे? देयर आर पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स आर 4। यहां देखिए, इसमें ब्लड ग्रुप हमें A मिला है, A ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट हियर। इसमें ब्लड ग्रुप हमें केवल B ही मिला है, और इसमें हमें ब्लड ग्रुप मिला है AB, और इसमें मिला है O। सो हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स वी हैव? A, B, AB एंड O। पता चल गया बच्चों ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास कैसे आए? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt, any confusion in it? No, sir. वेरी गुड। अब यहां देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, एनी कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकता है। Any student have got any confusion? No one is responding. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. हाँ, वेरी गुड। नाउ लुक हियर। सो दीज आर नोन एज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर करे? कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनके एलील्स कौन से होते हैं? 6 एलील्स के बेस पर हमने 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको अभी सामने रखा आपके। नाउ क्वेश्चन इज दैट राइज कि इफ अ पर्सन है ब्लड ग्रुप A, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, तो उस पर्सन के ब्लड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी? क्लियर? तो बच्चों इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लुक हियर, प्लीज पे अटेंशन। The most important thing which is related to the blood group is antigens and antibodies। Antigens and antibodies। पहले आपको पता होना चाहिए एंटीजेंस क्या होते हैं। Look here, please pay attention। Antigens are known as a specific types of protein। एंटीजन क्या होती है? ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की जो आउटर सरफेस होती है उसमें मिलती है। दे आर नोन एज एंटीजेंस। Antigen is a specific types of protein
which is present the outer membrane of the RBCs. RBCs की outer membrane में मिलती है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर, अभी मैंने बताया था आपको, एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय, किसके थ्रू सीक्रेट होती है एंटीबॉडीज? एनीवन? अभी बताया था मैंने आपको कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं, अग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं एक स्पेसिफिक टाइप की, जो क्या करती हैं? एंटीजेंस को सीक्रेट रिलीज करती है। एनीवन? मोनोसाइट्स बताई थी, मोनोसाइट्स का दूसरा पार्ट क्या था? लिम्फोसाइट्स। Lymphocyte. Lymphocytes. Lymphocytes are two types, T lymphocyte and B lymphocyte cells. तो T and B lymphocyte cells are, they secrete the antibodies. वो antibodies को रिलीज करने का काम करती है। So antibodies are present in our plasma. हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मिलती है, और हमारी जो आरबीसीज होती है उनकी आउटर कवर एरियाज पे क्या मिलता है? हमें एंटीजन मिलता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कहाँ रहते हैं, पता चल गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Antigens are present in the outer membrane of the RBCs. Antibodies are present in plasma. Antibodies जो होते हैं वो कहाँ present रहते हैं? प्लाज्मा में present रहते हैं। Clear? According to this, please turn on your cameras and listen carefully. According to this, we will divide the A, B and AB blood